السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو ایک بار دہراتا ہے جو اوپر دیے گئے ہیں؟ أسى وكذبوا هدى المفلحون۔ جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ اولئک علی فراغ من ربہم۔ أولئك على هدى من ربهم۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ واولئک هم فراغ۔ أولئك هم المفلحون۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فاولئک فراغ اللہ ان یعفو عنہم۔ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَرَغْ بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے یہ چار کلمات کون پڑھتا ہے؟ بربهم فعجب ترابا الأغلال۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَرَغْ قَوْلُهُمْ۔ وَإِن تَعْجَبْ فَأَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ أَإِذَا كُنَّا فَرَغْ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ وَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ اولئک الذین کفروا فراغ۔ أولئك الذين كفروا بربهم۔ جزاک اللہ۔ اب آخری سوال پہ چلتے ہیں۔ واولئک فراغ فی اعناقہم۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے ان تصویروں کو ایک بار مکمل کر لیتے ہیں۔ سنبلات خضر أبيض سنبلات يابسات أخضر أسود۔ جزاک اللہ۔ الحاقم تقاصر المقابر يعلمون تعلمون قلب۔ جزاک اللہ۔ بقرات جوف ناقة كلب ذئب۔ جزاک اللہ۔ أمها عدسها بصلها بقلها كسائها۔ جزاک اللہ۔ عينين لسانا شفتين رأس يد۔ جزاک اللہ۔ آسر عمر الطیر ہدینا النجدین۔ جزاک اللہ خیر۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا کریں گے؟ ذانکا اور تانکا کے بارے میں جانیں گے۔ تو یہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، چاہے یہاں پر کھڑا زبر ہو یا نہ ہو، یہ اسماء اشارہ میں سے ہے جو دور کے لیے لگتے ہیں اور یہ ڈیول کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، یعنی جو ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جانیں گے ذانکا اور تانکا کے بارے میں۔ اب آئیے آگے جانے سے پہلے اپنے ارکام کے سفر کو آگمنٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے صفر سے شروع کیا، چلتے چلتے ہم الف پر پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا 1000 سے 10,000 تک ہم کیا کہتے ہیں، یعنی 1000 کے لیے الف، پھر الفین، پھر ثلاثۃ آلاف، یعنی ہم آلاف کا سفکس 10 تک اس میں لگاتے ہیں۔ ثلاثۃ آلاف، اربعۃ آلاف، خمسۃ آلاف، ستۃ آلاف، سبعۃ آلاف، ثمانیۃ آلاف، تسعۃ آلاف، عشرۃ آلاف۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو کاؤنٹنگ شروع ہوگی 11 to 99، اس میں ہم الف یا الفن لگاتے ہیں۔ مثلا ہم نے کہنا ہے 11,000،
تو ہم کہتے ہیں احد عشرہ الف یا احد عشرہ الفن، یعنی یا تو ایسے یا تو ایسے اس کے ساتھ. اور یہ کہانی کہاں تک چلتی ہے؟ برابر 99 تک، یعنی 99,000 تک ہم نے یہی قاعدہ اپنانا ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ جو 3 سے 10 تک ہم نے آلاف کا سفکس اس پر لگانا ہے، یعنی 3000 ثلاثت آلاف، اربعۃ آلاف. لیکن 11 سے آگے ہم نے صرف الف یا الفن لگانا ہے. اب دیکھیں آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیا سمجھنے والے ہیں، وہ یہ کہ جو انڈین سسٹم میں لیک ہے، عربی میں اسے استعمال نہیں کیا جاتا. یعنی اگر آپ جانتے ہوں گے کہ جو ہمارا انٹرنیشنل سسٹم ہوتا ہے اس میں 99,000 کے بعد کیا آتا ہے؟ 100,000، اور پھر 1000 ہی چلتا ہے، اور اس کے بعد ملین، بلین اور ٹریلین آ جاتا ہے. تو جو انڈین سسٹم میں لیک ہوتا ہے، یہاں پر ہم لیک کے بجائے انٹرنیشنل سسٹم کی ہی طرح پڑھتے ہیں. یعنی 99,000 کے بعد کیا آئے گا؟ 100,000. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سسٹم آف نمبرنگ ہے وہی فالو ہوتا ہے عربک سسٹم آف نمبرنگ میں. فرق کیا ہے؟ وہاں پر ہم کوما استعمال کرتے ہیں، یعنی مثلا 100,264، تو یہ کوما اس کو سیپریٹ کرتا ہے. عربی میں کوما استعمال نہیں کیا جاتا، کہیں کہیں پر سپیس ڈالی جاتی ہے اس پیریڈ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. تو اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 3 ڈیجٹ نمبر کا پڑھنے کا انداز ہے وہی اب ہمیں یہاں سے آگے بھی اپنانا ہوگا. بس کرنا کیا ہے؟ اس کے آخر پہ ہمیں الف یا الفن کہنا ہوگا. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک 6 ڈیجٹ نمبر ہمارے پاس ہے، ہم بیچ میں ایک سینٹرل لائن کھینچیں گے، جس اندازے سے ہم رائٹ والے پورشن کو پڑھتے تھے اسی اندازے سے ہم لیفٹ والے پورشن کو پڑھیں گے، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد ہم الف یا الفن لگا دیں گے. تو ایک بار دیکھ لیجئے یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ ہے، کیونکہ یہ 10 ہے تو یہاں پہ ہم کیا پڑھیں گے؟ عشرۃ آلاف، عشرۃ آلاف، یہاں پہ ہم نے آلاف کہنا ہے. اور پھر یہ کیا ہے؟ میاں، خمسہ وثلاثون. اب یہاں دیکھیں یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پر ہے 52. پڑھنے کا قاعدہ وہی، اسنان و خمسون الف، اور اس کے بعد میاتان اربع وستون. اب دیکھیں آج کیا ہے؟ آج ہمارے پاس ہے 100,000، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ 100 کو ہم میاں کہتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم کہیں گے میاں لیکن الف، میاں الف، میاں الف. اور پھر اسے کیسے پڑھیں گے؟ اسے ہم پڑھیں گے میاتان اربع وستون، اربع وستون. اب آئیے اب ہم اس پر پریکٹس کریں گے. یعنی یہ پیریڈ جو ہے اس کو آپ نے جیسے پڑھنا ہے ویسے ہی اسے پڑھنا ہے. فرض کیجئے یہاں پر بھی ہے 819 اور یہاں پر بھی ہے 819، تو یہاں ہم کیسے پڑھیں گے؟ یعنی سمانومیہ تسع عشرہ. اسی طرح یہاں پر بھی ہم کہیں گے سمانومیہ تسع عشرہ، لیکن یہاں پہ لگائیں گے الف. تو انٹرنیشنل سسٹم میں کیسے پڑھنا ہے؟ 234 یہاں پر بھی پڑھنا ہے، 234 یہاں پر بھی پڑھنا ہے. یہاں کو 234 پڑھنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ 234,000 اور پھر 234. بالکل اسی پیٹرن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان نمبرز کو پڑھیں گے، یعنی سیمیٹریکلی جیسے ہم یہ ادا کریں گے اسے بھی ویسے ہی ادا کریں گے. بس یہاں پر اینڈ میں کیا کریں گے؟ الف لگا لیں گے. 612 ألف 453. جزاک اللہ. 382 ألف 819. جزاک اللہ. 597 ألف 891. جزاک اللہ. 613 ألف 364. جزاک اللہ. 403 982. جزاک اللہ. 826 ألف 637. جزاک اللہ. 721,637. جزاک اللہ. 589 ألف 468. جزاک اللہ. 813 ألف 911. جزاک اللہ. 648 ألف 724. جزاک اللہ. 904,300.
مية जज़ाकल्लाह। 812 जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह ताला की तौफीक से हम अस्मा इशारा कर रहे हैं, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। हमने देखा कि अस्मा इशारा आते हैं मुफरदन, मुसन्नन, जमअन, मुज़क्करन, मुअन्नसन, आकिलन व गैर आकिलन। और फिर हमने देखा इसकी 3 टाइप्स हैं, लिल करीब, लिल बईद। लिल करीब इससे पहले हमने किया था, और इंशाअल्लाह आज हम लिल बईद के अस्माई इशारा मुकम्मल करेंगे, और इंशाअल्लाह इसके बाद हम लिल मकान के अस्माई इशारा भी सीखेंगे। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। हादा, हादिही, हाउलाई, ये तीनों मबनी हैं, यानी ये चेंज नहीं होते, यानी मरफू, मंसूब और मजरूर हालत में सेम होते हैं। हादा मुफरद मुजक्कर के लिए लगता है, करीब के लिए, आकिल हो या गैर आकिल। हाजिही की 2 यूसेज है, मुफरद मुन्नस के लिए और जमा मुजक्कर मुन्नस हो लेकिन गैर आकिल होना चाहिए। हाउलाई इसके बरक्स है, ये जमा मुजक्कर और मुन्नस के लिए लगता है लेकिन आकिल होना चाहिए, यानी जो चीजें हाजिही ने छोड़ दी वो हाउलाई ने पकड़ ली। फिर हमने ड्यूअल में देखा कि ड्यूअल मुअर्रब है, यानी इसमें मरफू अलग है, मंसूब और मजरूर अलग है। जैसे मुजक्कर के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं, हादानी, मरफू के लिए, मंसूब और मजरूर के लिए हादैन। इसी तरह मुअन्नस के लिए रफी हालत में हम कहते हैं हातानी, और नस्बी और जरी हालत के लिए हातैन। उसके बाद हमने रुख किया बईद की तरफ, बईद यानी दूर की तरफ। इसमें भी हमने देखा ज़ालिका, तिलका और उलाइका, ये तीनों मबनी है, यानी मरफू, मंसूब और मजरूर हालत में बिल्कुल सेम रहते हैं। फिर हमने देखा ज़ालिका मुफरद मुजक्कर के लिए लगता है, आकिल हो या गैर आकिल। तिलका की भी 2 यूसेज थी, मुफरद मुअन्नस के लिए चाहे आकिल हो या गैर आकिल, लेकिन जमा के लिए कंडीशन क्या है, गैर आकिल होना चाहिए। जो यहाँ पर छूट गए वो हमने यहाँ पर पकड़ लिए, यानी जो जमा आकिल थे चाहे मुजक्कर हो या मुअन्नस, उनको हमने उलाइका से रिप्रेजेंट किया। जैसे यहाँ देखें ज़ालिका तबीबुन, तो इसकी जमा चूंकि तबीब जो है आकिल है, उलाइका तिबा। इसी की मुअन्नस देखे तिलका तबीबतुन, तो यहाँ पे ज़ालिका आया, यहाँ पे तिलका आया, और इसकी जमा में क्या आया, उलाइका तबीबात। इसके बरक्स देखें, यहाँ पर भी है ज़ालिका किताबुन, तिलका नाकतुन, यहाँ पे मुजक्कर के साथ, यहाँ पे मुअन्नस के साथ, लेकिन इनके जमा में दोनों जगहों पर क्या आया, तिलका। क्यों भला, क्योंकि किताब और नाका जो है ये गैर आकिल है, तो लिहाजा तिलका कुतुबुन, तिलका नाकातुन। अस्मा इशारा किए थे, इस पर हमने एक प्रैक्टिस की थी, तो एक बार इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। हाजा मिफ्ताहुन, ذلك مفتاح هذه مفاتيح تلك مفاتيح हाजा सरीरुन, ذلك سرير هذه سرر تلك سرر हाजा नजमुन, ذلك نجم هذه نجوم تلك نجوم हाजा मस्जिदुन, ذلك مسجد هذه مساجد تلك مساجد हाजा किताबुन, ذلك كتاب هذه كتب تلك كتب हाजा कमीसुन, ذلك قميص هذه قمصان تلك قمصان जज़ाकुमुल्लाह खैर। हाजा जमलुन, ज़ालिका जमलुन, هذه جمال تلك جمال हाजा बाबुन, ज़ालिका बाबुन, هذه أبواب تلك أبواب हाजा हिमारुन, ज़ालिका हिमारुन, هذه حمير تلك خمير हाजा बैतुन, ज़ालिका बैतुन, هذه بيوت تلك بيوت हाजा कुर्सियुन, ज़ालिका कुर्सियुन, هذه كراسي تلك كراسي हाजा कलमुन, ज़ालिका कलमुन, هذه أقلام تلك أقلام जज़ाकुमुल्लाह खैर। هذا تاجر ذلك تاجر हाउलाई तुज्जार, أولئك تجار هذه تاجرة تلك تاجرة हाउलाई ताजरात, أولئك تاجرات هذا طبيب ذلك طبيب हाउलाई इत्तिबा, أولئك اتباع هذه طبيبة تلك طبيبة हाउलाई तबीबात, أولئك طبيبات
هذا طالب ذلك طالب هؤلاء طالبون أولئك طالبون هذه طالبة تلك طالبات هؤلاء طالبات أولئك طالبات هذا مدرس ذلك مدرس هؤلاء مدرسون أولئك مدرسون هذه مدرسة تلك مدرسة هؤلاء مدرسات أولئك مدرسات जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। तो देखिए अस्माई इशारा लिल बईद का सिलसिला जारी है। आज हम इसमें मुसन्ना के बारे में जानेंगे। तो पहले इस फिक्रे की तरफ फिर से आइए। अल अस्माई इशारा मबनी इल्लल मुसन्ना, यानी ड्यूअल के सिवा सारे अस्माई इशारा मबनी होते हैं। यानी ये फिर क्या होते हैं? ड्यूअल के लिए जो अस्माई इशारा वो मुअर्रब होते हैं। क्या मतलब? इनकी रफ़ी हालत अलग होती है, इनकी नज़बी और जर्री हालत अलग होती है। मजीद नोट कर लीजिए कि ये आकिल हों या गैर आकिल हों, दोनों के लिए यकसा इस्तेमाल होते हैं। यानी मुज़क्कर वालों के साथ मुज़क्कर और मुअन्नस वालों के साथ मुअन्नस। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो आकिल हैं, यहाँ पे दो गैर आकिल हैं। इसी तरह यहाँ पर भी दो आकिल हैं, दो गैर आकिल हैं। ये दोनों मुज़क्कर हैं, ये दोनों भी मुज़क्कर हैं, ये दोनों मुअन्नस हैं, ये दोनों मुअन्नस हैं। अब देखिए रफ़ा के लिए हमारे पास क्या है? ज़ानिका ज़ानिका ज़ानिका, यानी दूर इशारा करना है दो की तरफ, तो हम क्या कहेंगे? ज़ानिका। और इसकी नज़बी और जर्री हालत में ज़ैनिका ज़ानिका ज़ैनिका। आने, जो हमने इससे पहले देखा, आईने, यानी हमने कहा था नज़बी और जर्री साउंड, आने रफ़ी साउंड, आईने नज़बी और जर्री साउंड। मुअन्नस के लिए क्या है? तानिका। फिर से देखें, आने आईने आने आईने, तानिका तैनिका तानिका तैनिका। और ये हमें कब पता चलेगा? जब हम इंशाअल्लाह अफ़आल पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे मफ़ऊल कौन है। मफ़ऊल के वक्त हम क्या कहेंगे? ज़ैनिका तैनिका। ज़ैनिका और तैनिका में क्या फ़र्क है? वो मुज़क्कर के लिए लगता है और तैनिका मुअन्नस के लिए लगता है। जैसे मिसाल देख लेते हैं, यहाँ पर दो डॉक्टर हैं, तो उनकी तरफ इशारा करके जो दूर हैं तो हम कहेंगे ज़ानिका तबीबानी जदीदानी, यानी यहाँ पर ये फाइली प्लेस पर हैं, तो लिहाजा हमने इस्तेमाल क्या किया? ज़ानिका। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि मुझे वो दो डॉक्टर महबूब हैं, यानी मुझे क्या महबूब है? वो डॉक्टर, यानी वो दो डॉक्टर मफऊल है। तो यहाँ पे ज़ानिका के बदले ज़ैनिका आएगा। ज़ैनिका तबीबैन, उहिब्बु ज़ैनिका तबीबैन। इसी तरह मिसाल के तौर पर मुझे उन दो डॉक्टरों से कुछ लेना है, तो मिन आया इससे पहले, तो मिन हर्फ जारा में से है, ये इसम को मजरूर कर देता है, यानी इसके बाद जो इसमें इशारा होगा वो भी फिर मजरूर होगा। अब अगर ये वाहिद या जमा के होते तो यहां पर कोई चेंज नहीं आती, लेकिन ये ड्यूअल है, ड्यूअल मुअर्रब होता है, तो लिहाजा मुझे उन दो डॉक्टरों से कुछ लेना है, तो मिन आने की वजह से ज़ैनिका आया है। यानी अस्माई इशारा जो मुसन्ना के होते हैं ये मुअर्रब होते हैं। ज़ानिका तानिका ज़ानिका तानिका, और फिर इनकी नज़बी हालत क्या है? ज़ैनिका तैनिका, आने आईने। अब आइए आगे जाने से पहले कुरान करीम की एक आयत मुबारका देखते हैं, सूरे नंबर 28 की आयत 32। इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि फेंको जो तुम्हारे हाथ में है, तो वो यकायक एक सांप बन जाता है। आप इसकी तफसील खुद देख सकते हैं। अब फिलहाल इस आयत को देख लेते हैं। उसलुक यदक फी जैबिक तखरुज बैदा मिन गैरि सूइन वज़मुम इलैक जनाहक मिनर रहम फज़ालिक बुरहानान मिन रब्बिक इला फ़िरऔन व मलइह इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन। उसलुक यदका फी जैबिक, अपने गिरेबान में, यानी जो टॉप स्लिट होता है ऊपर, या इससे मुराद जो हमारे पॉकेट्स होते हैं। उसलुक यदका फी जैबिक, दाखिल करो अपना हाथ अपने जेब में, अपने गिरेबान में। तखरुज बैदा मिन गैरि सू, निकल कर आएगा चमकदार, मिन गैरि सू, जिसमें कोई नुक्स नहीं होगा। अपने हाथ को अपने गिरेबान में डालो, वो रोशन होकर निकलेगा बगैर किसी ऐब के। वज़मुम इलैका जनाहका मिनर रहब,
वज़मुम, और ज़म होता है मिलाना, वज़मुम इलैका, और मिलाओ अपने बाजू को अपनी तरफ। कहते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पर ये दोनों किस्से हुए थे, इससे पहले उन्होंने सांप देखा था और अब हाथ को चमकदार देखा, तो अब इनसे कहा गया कि अब आप क्या करो, इसको मिला लो, वज़मुम इलैका बिजनाहका मिनर रहब। अब इस पर कुछ कहते हैं कि उसे कहा गया कि ये हाथ अपने जिस्म पर रखो, अपने सीने पर रखो, कुछ कहते हैं अपने रान पर रखो, ताकि तुम्हारा जो खौफ है वो कम हो जाए। फज़ानिका, तो यहां पर ज़ानिका जो है इस्तेमाल हुआ है, तो ये दोनों बुरहानान, तो ये दोनों बुरहानान है, यानी ये दोनों निशानियां हैं। पहली निशानी कौन सी थी? लाठी का सांप बनना, और दूसरा क्या था? हाथ का चमकदार बनना। मिर रब्बिका, ये तुम्हारे रब की तरफ से, इला फिरऔन व मलइही, फिरऔन की तरफ और उसके सरदारों या उसके दरबारियों की तरफ। इन्नहुम, बेशक वो, कानू, हैं, कौमन फासिकीन, फासिक लोग। उसलुक यदका फी जैबिका तखरुज बैदा मिन गैर सू, अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो, वो रोशन होकर निकलेगा बगैर किसी ऐब के। वज़मुम इलैका जनाहका मिनर रहब, और खौफ को दूर करने के लिए बाजू सुकेड़ो। वज़मुम इलैका जनाहका मिनर रहब फज़ानिका, तो ये जो दोनों बुरहानान, निशानियां हैं, मिन रब्बिका, तुम्हारे रब से, तुम्हारे रब की तरफ से, इला फिरऔन, फिरऔन के लिए, यानी फिरऔन की तरफ तुम्हें जाना है और उसके सरदारों की तरफ। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, बेशक वो फासिक कौम में से है। अब यहां पर हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, एक तो था ज़ानिका, और यहां पे देखिए बुरहानान, आने का साउंड आया है, यानी ये यहां पर मरफू है। अगर ये मंसूब या मजरूर होता तो ये ज़ैनिका की फॉर्म में होता। अब आइए इस पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ज़ालिका सरीरुन, ज़ानिका सरीरान, ज़ैनिका सरीरैन, तिलका सुरूर, ज़ालिका नजमुन, ज़ानिका नजमान, ज़ैनिका नजमैन, तिलका नजमुन, ज़ालिका मस्जिदुन, ज़ानिका मस्जिदान, ज़ैनिका मस्जिदैन, तिलका मसाजिद, ज़ालिका किताबुन, ज़ानिका किताबान, ज़ैनिका किताबैन। तिलका कुतुब, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ज़ालिका जमलुन, ज़ानिका जमलानी, ज़ैनिका जमलैन, तिलका जमालुन, ज़ालिका बाबुन, ज़ानिका बाबानी, ज़ैनिका बाबैन, तिलका वाव, ज़ालिका बैतुन, ज़ानिका बैतानी, ज़ैनिका बैतैन, तिलका बयूतुन, ज़ालिका कुर्सियुन, ज़ानिका कुर्सियानी, ज़ैनिका कुर्सियैन, तिलका करासियुन, ज़ालिका कलमुन, ज़ानिका कलमानी, ज़ैनिका कलमैन, का अक़लाम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ज़ालिका मुदर्रिस, ज़ानिका मुदर्रिसान, ज़ैनिका मुदर्रिसैन, उलाइका मुदर्रिसून, तिलका तौलिबात, तानिका तौलिबतान, तैनिका तौलिबतैन, उलाइका तालिबात, ज़ालिका तबीबा, ज़ानिका तबीबान, ज़ैनिका तबीबैन, उलाइका अत्तिबा, तिलका ताजिरतुन, तानिका ताजिरतान, तैनिका तौजिरतैन, उलाइका ताजिरात, ज़ालिका तौलिब, ज़ानिका तौलिबान, ज़ैनिका तौलिबैन, उलाइका तुल्लाब, तिलका मुदर्रिसतुन, तानिका मुदर्रिसतान, तैनिका मुदर्रिसतैन, उलाइका मुदर्रिसात, ज़ालिका ताजिरुन, ज़ानिका ताजिरान, ज़ैनिका तौजिरैन, उलाइका तुज्जार, तिलका तबीबतुन, तानिका तबीबतान, तैनिका तबीबतैन, उलाइका तबीबात, जज़ाकुमुल्लाह खैर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे है ज़ालिका जमलुन, तिलका नाकतुन, और फिर
ड्यूअल हमने इसके पढ़े, दोनों में आया तिल का जिमालुन, तिल का नाकातुन। इसके बरक्स हमने यहाँ देखा था ज़ालिका तालिबुन, तिल का तबीबतुन, लेकिन इनकी जमा में उलाइका आया था, उलाइका तुल्लाब, उलाइका तबीबात। आज चूंकि हमने ड्यूअल किया है तो ये मैस्कुलाइन है और ये भी मैस्कुलाइन है, तो इसको मरफू में हमने क्या लगाया है, ज़ानिका जमलानी, यहाँ पे इसके साथ भी ज़ानिका तालिबानी, लेकिन नज़बी और जर्री में क्या है, ज़ैनिका जमलैनी, ज़ैनिका तालिबैनी। और मोनस में देखें बिल्कुल इसी पैटर्न में, तानिका, तानिका यहाँ पर भी है, तानिका नाकतानी, तानिका तबीबतानी। और नज़बी और जर्री हालत में देखें, तैनिका नाकतैनी, तैनिका तबीबतैनी। तो इस तरह आज अल्लाह ताला की तौफीक से हमने अस्मा इशारा को मुकम्मल कर लिया है। तो इसको आप जहन में रखें, यानी जो अस्मा इशारा करीब के लिए हमने पढ़ा, जो वाहिद और जमा के होते हैं वो मबनी होते हैं, यानी हादा, हादिही, हाउलाई। इसी तरह बईद के लिए ज़ालिका, तिलका, उलाइका। उसके बाद हमने ड्यूअल का जो सेट देखा, करीब में भी ये मुअर्रब हैं और बईद में भी ये मुअर्रब है। तो यहाँ पर हमने देखा हादानी, हादैनी, यहाँ पे है हातानी, हातैनी, और दूर में हमने क्या देखा, ज़ानिका, ज़ैनिका, तानिका, तैनिका। तो इस तरह आज अल्लाह ताला की तौफीक से अस्मा इशारा लिल बईद में हमारा फोकस आज ड्यूअल पर था। इसमें आज हमने देखा ज़ानिका, ज़ैनिका, तानिका, तैनिका, मुसन्ना मुज़क्कर हो या मुअन्नस, आकिल हो या गैर आकिल। तो इस क्लास में जो भी खैर था वो अल्लाह के करम से था, इसमें जो भी कमी कोताहियाँ थी वो मेरी और शैतान की तरफ से थी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।